We spend years refining, upgrading our skills, our degrees, even our LinkedIn profiles. But how many of us proactively take account of how we are building our foundation, our inner foundation, how deep it is? And today, in our podcast, Bookshelf to Boardroom, I am delighted and humbled to welcome Mr. Nikhil Tripathi with a BTech from IIT Kanpur, an MBA from HEC Paris, and around 2 decades of experience across industries, across functions, and across various geographies. I'm sure our today's conversation is going to be very rich, full of a lot of insights. With that, thank you, Nikhil, for joining us today. We are delighted to have you. Thank you, Prakriti, for inviting me. It is a pleasure. All right. So, Nikhil, for our audience to connect with you better, would you like to share a little bit about yourself? Absolutely. So, as you said, मैंने पहले engineering करी थी. उसके बाद I started working in a finance company as a derivatives trader, trading in energy products like crude oil, energy certificates, and so on. वो 4 साल किया. उसके बाद I got married, and I had to change a career because timing जो था, I was operating in European markets, US markets, so it was not matching. So I changed my career. I moved to sales and business development at a big chemical company, BASF. And वहाँ पे मैंने South Asia business में specific product lines को देख रहा था. Then after that, I decided I'll go for an MBA. So I came to France to do my MBA. उसके बाद I joined Schneider Electric in e-commerce business for data analytics for e-commerce. वहाँ पे रहा around 5.5 years, and for last 1.5 years I've been working with office supplies company called Viking Direct as a senior pricing manager. Wow, Nikhil, amazing introduction. But एक obvious सा question आया है मुझे. इतनी अच्छी fancy pedigree है आपके पास, इतनी अच्छी अच्छी companies में आपने काम किया है, globally काम किया है. फिर भी why are we starting this podcast talking about inner foundation? I think everything begins there, right? अपना self awareness, the willingness to learn and achieve more in terms of being better of yourself, and values that you carry, वो बहुत important aspects हैं. Pedigree and all किसी के पास हो चाहे ना हो, but अगर he or she has a right foundations within themselves, that what they are striving for, why they are doing what they are doing, वो सारी चीजें बहुत important हो जाती हैं. तो अगर and maybe also because जो चीज़ आपके पास अभी है वो शायद कल ना रहे, जो इंस्टीट्यूट की वैल्यू अभी है शायद कल ना रहे, बट जो आपके अंदर स्किल्स हैं, what really makes you or what helped you achieve that particular milestone in your life will always stay. True, and actually milestones are more like just a checkpoints, right? आपको आपकी लाइफ जो है एक जर्नी है, उस लाइफ में आप डिफरेंट जगह पे जा रहे हैं, डिफरेंट चीजें कर रहे हैं, and you are having a lot of experiences, but the foundations that you carry, that will make sure कि आप absorb कर रहे हैं चीजें, आप उनके अब उनको use कर रहे हैं, and you are going ahead. जैसे I always believe that every time you achieve something, it adds an extra responsibility to you, right? आप किसी भी कॉलेज से जाते हैं, you become an alumnus of that college. You have to carry that status या carry that reputation for that college, right? आप कुछ अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, that also affects everybody else that is associated with you. आप country से बाहर आते हैं, तो आपका country के लिए एक responsibility होती है. आप बाहर जाके कुछ गलत करेंगे, people will always connect it to who you are. तो those foundations, those जो aspect है आपका कि you need to be right, you need to be full of values कि हमको ये सही करना है, those carry you forward in the right way. Got it. But जो सही करना है सबके लिए सही अलग होता है, correct? And that translates to self awareness कि आप अपने आप को कितना जानते हो कि आपके लिए क्या सही है, आप क्या जानते हो. And in a life that we all live in, which is like super fast paced, hustle, we have million responsibilities, tech is changing every second day, and there's so much to catch up with. Everything is ambiguous and uncertain. So usme, how can people like us develop self-awareness? Like everything else in life, right? You have to spend some time.
कितना भी कोई बिजी हो जाए, इवन द टॉप पॉलिटिशियंस, द टॉप पीपल इन देयर स्पोर्ट्स फील्ड एंड ऑल, वो टाइम निकालते हैं, चाहे वो 10 मिनट्स बिफोर स्लीप जब आप बेड पे लेटे हैं, या जब आप शावर ले रहे हैं, या आप वॉक कर रहे हैं, या कहीं ड्राइव कर रहे हैं, अपने किड्स को ले जा रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, वो 10 मिनट 15 मिनट व्हेन यू कैन टॉक टू योरसेल्फ कि एम आई डूइंग द राइट थिंग्स, एम आई मेकिंग माई सेल्फ हैप्पी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. क्योंकि अगर आप जो कर रहे हैं उससे आपकी इनर जो कोर है, इनर वॉइस जो है वो हैप्पी नहीं है, तो इट विल रिफ्लेक्ट इन योर आउटपुट. वो आप 100% नहीं होंगे, आपको फील लेथार्जिक होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा इन रिलेशनशिप, इन प्रोफेशन, अदरवाइज. तो वो द 10-15 मिनट्स ऑफ टॉक विद योर सेल्फ एवरी डे, एवरीबडी कैन फाइंड दैट टाइम, और उससे सेल्फ अवेयरनेस आता है बहुत जल्दी. Got it. So I think our dear listeners, we have no more excuse to give ourselves. You and I can all find those 15 minutes of time in a day. But फिर भी एक क्वेश्चन है निखिल, which is कि ठीक है, हमने टाइम निकाल लिया, we have started self reflecting, we are trying to figure out what is it that we want. But there's a very blur line between कि क्या सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है, क्या एज अ पेरेंट में भी आपको की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, so what you should do, और 100 other things, right? So how can we distinguish between what are our goals and what are the ones that we have set based on, say, status, maybe expectations from parents or society? This is a very important बात, क्योंकि क्या है कि जब हम कुछ गोल्स एंड विजन्स के साथ जीने लगते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट. क्योंकि आपने सपोज करिए अपने पेरेंट्स का ये ड्रीम था कि आपका बच्चा IIT जाए, राइट? हर पेरेंट्स का होता है, या तो इंजीनियर है, मेडिकल, एटलीस्ट 25 ईयर्स अगो था ऐसा. तो वो आप जीने लगते हैं जब, तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ हु यू आर, राइट? बट जब आप एक बहुत फेमस चीज है कि आप जब कॉइन टॉस कर रहे होते हैं, जब कॉइन एयर में होता है, तो आपको एक फीलिंग आती है कि डू यू रियली वांट इट टू बी हेड या डू यू रियली वांट इट टू बी टेल. वो एक अपने आप में एक एस्पेक्ट है जो आपको बताएगा कि ये आपका दिल की इच्छा है कि नहीं, राइट? धीरे धीरे सुनने की कोशिश करनी है, और वो जब धीरे धीरे जब 15 मिनट्स में ये हम चेक करेंगे कि एम आई हेडिंग इन द डायरेक्शन आई वांट, या दैट मेक्स मी हैप्पी, धीरे धीरे वो आ जाता है कि हाँ ये मेरे गोल्स हैं, ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि वो बात हो रही थी ऐसी, घर में ऐसा माहौल था, उसके कारण हमने ऐसा करने लगे. धीरे धीरे आ जाता है वो. वाओ, थैंक यू निखिल. And इसी के साथ we'll keep the momentum going, and there's one more thing that I wanted to cover. In our previous conversation, we have talked about the importance of learning, and you mentioned कि learning should always come before ego. इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं. कोई experiences हैं आपके जो आप शेयर करना चाहो? बिल्कुल. तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा इसमें कि हमारे कल्चर में बिल्कुल ये कहा गया है कि लर्निंग और ईगो एक साथ नहीं रह सकते, राइट? अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको एकदम बिल्कुल नतमस्तक होके सीखना है. उसी चीज़ को अगर हम आज की डेट में देखें तो एवरीबडी हैज़ अ लॉट ऑफ, अभी आप बोल रहे थे जैसे कि एवरीबडी इज़ बिजी डूइंग डिफरेंट थिंग्स एंड सो ऑन, राइट? वो डिफरेंट थिंग्स में वो दे आर ऑल्सो कैरिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड डिफरेंट स्किल सेट्स. अगर आपको कुछ सीखना है तो उनसे जाके पूछना ही पड़ेगा. ये सोचना कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ही विल थिंक कि दिस पर्सन इज सच अ सीनियर एंड डजंट नो दिस, एज एन इंटर्न व्हाट वैल्यू आई कैन ऐड, वो चीज़ के बारे में वो नहीं सोचेंगे. बिकॉज एवरीबडी गेट्स हैप्पी अगर आप उनसे पूछेंगे अरे आप ये कैसे कर लेते हो, ये मैं सीखना चाहता हूँ. तो ईगो हमारे अंदर होता है जो हमें ब्लॉक करता है टू आस्क पीपल फ्रॉम लर्निंग. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. अभी आजकल LLMs और एजेंटिक AIs का बहुत सारी बातचीत हो रही है, राइट? मैंने जब ये सब पढ़ाई करी थी, पहली बात तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ऊपर से ये सब चीज़ें कभी पढ़ाई नहीं गई थी. तो आज की डेट में अगर मैं अपने इंटर्न्स या इवन अपने जो कुछ नेफ्यूज़ एंड नीस हैं जो कि 20 ईयर्स यंगर टू मी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे बताते हैं वो कैसे डिफरेंट मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, एंड दैट हेल्प्स मी. मैं उसके बारे में जाके पढ़ता हूँ, फिर मैं उनसे और पूछता हूँ, तो लर्निंग गोज़ ऑन, राइट? मैं अपने आप को अपडेट कर पा रहा हूँ क्योंकि आई एम ओपन टू आस्क देम. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन लोगों ने मुझसे कहा अरे आप कैसे, आपको मैं क्या ही बताऊंगा, बिकॉज दे नो कि व्हाट दे नो इज गुड, एंड उससे उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है. बट एज अ इंडिविजुअल आपको हमेशा ही सीखने को मिलेगा. करेक्ट. बट
एक बात बताइए, अगर आपने सरेंडर करके, नतमस्तक करके, जैसे आपने कहा, हमने सीखा, ठीक है, एक बहुत लंबी जर्नी में बहुत डिलिजेंस के साथ बहुत एफर्ट्स डाले, एंड उसके एंड में वी वर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स एंड वी डिडंट गेट दोज रिजल्ट्स, एंड इफ उसके बाद भी वी हैव टू कंटिन्यू दैट डिलिजेंस, तो एक वो आ जाता है ना कि अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, इसके नीचे नहीं जाएंगे, बट कभी कभी लाइफ थ्रोज कर्व बॉल्स एंड वी हैव टू, तो वो कैसे हम मैनेज करें? क्योंकि ट्राई तो सब करते हैं, बट एक टाइम के बाद एक इंटाइटलमेंट आ जाता है कि यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, अब इसके नीचे नहीं जाएंगे, तो व्हाट अबाउट दैट? आई थिंक आपने प्रकृति एक बहुत अच्छी बात बोली कि एक्सपेक्टेशंस, आई थिंक वहाँ पर आई विल मेंशन भागवत गीता, जहाँ पे हमें बताया गया है कि यू हैव टू डू योर थिंग्स, कर्म करो, फल की चिंता ना करो, राइट? ये बहुत ही कॉमन वाला पार्ट है भागवत गीता का, सबको पता होता है। लेकिन बहुत सारे लोग, और कई बार हम लोग भी, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी पहले ये नहीं कर पाता था कि कैसे अपना को डिटैच करें कि इतना एफर्ट लगा रहे हैं, रिजल्ट क्या आएगा, और इतना कर लिया इसके बाद ये तो कर ही लेंगे, राइट? ऐसा कुछ होता नहीं है। आपका कोई लेवल 0 है नहीं, क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ सीख रहे हैं, आपको आता है, यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव। कोई चीज़ आप 5 मिनट में कर पा रहे हैं, हो सकता है किसी सीख के वो 2 मिनट में कर पाए, राइट? या हो सकता है उसको बेटर क्वालिटी दे पाए, वो चीज़ है। प्लस रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो कुछ है ही नहीं। ये जो एक्सपेक्टेशन है कि हमने इतना सीख लिया, अब कुछ रिजल्ट आना चाहिए या ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। हमें ये सोचना है कि लाइफ में जब हम चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, वो हमें एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, और लिविंग इज ऑल अबाउट गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू हैव एक्सपीरियंसेस। तो उसके बाद कुछ एंड गेम नहीं है, बस आपको सीखते जाना है। ऐसा नहीं है कि सीख के आप किसी को और को सिखाने के लिए सीख रहे हैं, राइट? सिर्फ सीख रहे हैं क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंसेस करने का मौका मिला है, भगवान ने हमें मौका दिया है। वी आर हेयर, वी आर एंजॉइंग, वी आर एक्सपीरियंसिंग एंड लर्निंग। I love this perspective कि treating life as a series of varied experiences rather than measuring them in successes and failures, because at the end of the day, that's what we are all here for. And I'll segue into another question that's kind of linked to learning. So Nikhil, जब हम कुछ try कर रहे होते हैं ना, there are some people जिनको naturally वो आता है, वो उस स्किल्स के साथ डेवलप हुए हैं, वो इजीली बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, वर्सेस समवन जिसको बहुत पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, फॉर एन एग्जांपल। बट देन देयर आर द अदर लॉट जो बहुत मेहनत करेंगे, बहुत ट्राई करेंगे, इवन दो फॉर समवन जिसके साथ नेचुरली बिना एफर्ट के वो आ जाए, दे स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू दोज। एंड आई नो यू एंड आई हैड अ ब्रीफ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक अबाउट इट, एंड आई वांटेड टू अंडरस्टैंड मोर। सो व्हाट अबाउट difference between natural talent versus consistency and diligence? देखिए, everybody has some or the other natural skills, right? At the same time, specific चीज इसमें कोई काम करना चाह रहा है या कुछ एफर्ट लगा रहा है, उसमें कुछ तो नेचुरल टैलेंट होना चाहिए। Like if I cannot sing, right? I don't know how to swing. अगर मैं कितना भी एफर्ट लगा लूँ, I will not be able to understand the essence of singing, क्योंकि वो मेरे अंदर सेंस नहीं है। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अच्छा कर सकता हूँ, उसमें प्रैक्टिस करता रहूँगा तो आई विल गेट बेटर, राइट? नाउ अगर उस फील्ड में कोई पर्टिकुलर है, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल मैथ्स में मैं ओके हूँ, राइट? कोई मैथ्स में बहुत अच्छा हो, तो मैं अगर प्रैक्टिस करता रहूँगा रोज फ्यू एग्जाम क्वेश्चंस, फ्यू थिंग्स, तो आई विल अंडरस्टैंड एंड लर्न डिफरेंट पैटर्न्स अबाउट इट, राइट? सिमिलरली कुकिंग का, कि अगर मैं कुकिंग में देखता रहता हूँ डिफरेंट लोगों के वीडियोस कि कैसे कौन बना रहा है, उनको ट्राई करता रहूँगा, समटाइम्स आई विल नॉट मेक गुड, समटाइम्स आई विल नेवर मेक एज गुड एज देम, राइट? बट वो बात ही नहीं है ना, कंपैरिजन की बात ही नहीं है, क्योंकि कंपेयर उससे क्यों करना है? अगर जो मैं बना रहा हूँ वो उनको तो खिलाऊंगा नहीं, और खिलाऊंगा तो इट विल बी माई फूड, माई स्टाइल। तो क्या मैं खुद से बेटर हो पा रहा हूँ कि नहीं, वही माइंड सेट रखना है। और जो ये बात है कि डिलीजेंट वर्सेज इंटेलिजेंट, ये कोई वो है ही नहीं। व्हाट डू यू नीड टू बी एज एन इंडिविजुअल इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। यू नीड टू आइडेंटिफाई वेयर आर यू पुटिंग योर एफर्ट्स एंड आर यू गेटिंग बेटर देन व्हाट यू वर यस्टरडे। सो आई थिंक इट्स लिंकिंग बैक टू जो हमने थोड़ी देर पहले बात की अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, कि
reflecting inwards ki what is it that you want, rather than thinking I want this better or I want to be better at this than this person. What is it that excites you or where you want to be spending your time and skills in? All right, final question of this segment, Nikhil. Lots of nuggets of wisdom have already been shared. Comparison is the thief of joy. Very, very common saying. But it's not so easy to understand, is it? Like, it's very natural कि हम थोड़ी jealousy feel करें, थोड़ा comparison feel करें कि अरे उसकी तो better job लग गई या उसकी तो salary better है या he or they are having better vacation than we are. How do you pivot from that mindset to focusing more on bettering yourself? This is a very good one. क्योंकि ये कह देना कि अरे ऐसा मत करो, किसी को भी ये समझाना या ज्ञान देना बड़ा आसान है, बट इट्स नॉट ईजी, राइट? व्हेन आई वाज यंगर, इन माय जूनियर क्लासेस, इन माय टीनेज आल्सो, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करता था मैं कि अरे वो ऐसा कर रहा है, वो फर्स्ट आ रहा है तो कैसे आ रहा है, मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, या वो इस चीज़ में, इस कंपटीशन में कर रहा है, या इस डिबेट में जाके वो ऐसे बोल लेता है, मैं नहीं सोच पाता हूँ. दोज थिंग्स मेड मी अनहैप्पी, राइट? और वो सबसे बड़ा एस्पेक्ट था. ओवर टाइम आई रियलाइज्ड कि मैं कभी भी वो पर्सन नहीं बन सकता, क्योंकि मैं हूँ, मैं निखिल त्रिपाठी हूँ, तो मैं निखिल त्रिपाठी बन सकता हूँ. और जब तक मैं ये सोच रहा था कि उससे कंपेयर करके मैं उस तरह से कर लूँ, आई वॉज नेवर गिविंग 100% टू माई सेल्फ, राइट? तो वो चेंज हो गया एक. उसके बाद भी रिजल्ट क्या आएगा उसकी कोई वो नहीं है ना. बात वही है इन द एंड कि उसके रिजल्ट का नहीं, लेकिन खुद को इम्प्रूव करते रहना है. तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन, आई वुड से हर किसी का अपना एक डिफरेंट वे होगा. पहली बात तो आप उसका वे नहीं ऑप्टेन कर सकते, आप अपने ही रास्ते पे चल सकते हैं, आपके अपने एक्सपीरियंस, आपकी अपनी लाइफ जर्नी. सेकेंडली, जब आप किसी का देख रहे हैं सक्सेस, यू डू नॉट ऑल्सो नो द पेन्स दैट पर्सन हैज गॉन थ्रू टू रीच दैट सक्सेस. आप अप्रिशिएट कर रहे होते हैं रिजल्ट को, जबकि अप्रिशिएट करना उस जर्नी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको कुछ सीखना है तो उस जर्नी से सीखना है कि हाँ, मैं भी उस तरीके से अपने आप का एक इनर कोर इंप्रूव करूंगा, मैं भी अब डरूंगा नहीं, मैं भी घबराऊंगा नहीं, सिचुएशन ऐसी आएंगी, मैं उनको फेस करूंगा बेटर, राइट? ये सोचना कि मैं भी ज़्यादा पैसे बना लूंगा, दैट्स नॉट द एंड पॉइंट, राइट? ये भी सोच लेना कि मेरे को ये जॉब लग जाएगी, चलो आपकी लग गई, उसके बाद क्या, एग्जैक्टली, राइट? तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से सीखें. बिल्कुल कंपैरिजन में ये सीखें कि क्या मैं उसके जैसा पेशेंट हूँ, क्या मैं उसके जैसा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या मैं उसके जैसा ऑनेस्ट, हम्बल, काइंड हूँ. उस तरह की फीलिंग्स को आप सोचेंगे तो आप उनको इम्प्रूव कर पाएंगे अपने अंदर. अगर आप उसके रिजल्ट से सोचेंगे तो कैसे इम्प्रूव करेंगे? एंड निखिल, जो आपने बात की ना कि rather than appreciating the end goal, focus on the journey, appreciate the journey, इसी पे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं. We'll be deep diving into a lot of your stories, but in our chapter 2. So stay tuned. Thank you, Nikhil. Thank you. Thank you.